اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 45۔ پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اذ جب، قالت کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرک آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ ایک حکم کی، منہ اپنے پاس سے، اسمہ اس کا نام، المسیح مسیح، عیسی ابن مریم عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہن معزز ہوگا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، ومن المقربین اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 کے اندر اللہ رب العالمین نے خوشخبری کا ذکر کیا ہے، جو خوشخبری حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کو دی گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اذ قالت الملائکۃ جب فرشتوں نے کہا۔ اب یہ جو خوشخبری ہے یہ فرشتوں کی زبان سے دلوائی جا رہی ہے۔ یا مریم اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ بے شک اللہ تجھے بشارت دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے، ایک حکم کی، اپنے پاس سے، اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے تجھے خوشخبری دیتا ہے، اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے۔ اب یہاں بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے بکلمۃ کا لفظ استعمال کیوں فرمایا۔ کلمہ جس کا معنی ہوتا ہے ایک جملہ، ایک سینٹنس، ایک بات، یہاں پر اس سے مراد ہے حکم۔ اللہ تجھے اپنی جناب سے ایک حکم کی خوشخبری سناتا ہے۔ اب یہ حکم کیا ہے؟ یہاں حکم سے اصل میں مراد کیا ہے؟ مراد ہے یہاں پر ایک بچہ، کہ اے مریم اللہ تجھے ایک بچے کی خوشخبری سناتا ہے، اللہ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب بیٹے کی بشارت دی ہے تو بیٹا لفظ استعمال کیوں نہیں فرمایا، کلمہ لفظ استعمال کیوں فرمایا؟ اس کے دو جواب سمجھیے گا۔ ایک اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے کلمہ لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، کوئی سبب ہوتا ہے تو لوگوں کی جو توجہ ہے وہ اس سبب کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ یوں تو کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کے کلمہ کن، حکم کن کا ظہور ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کو کلمہ کن سے تخلیق فرمایا ہے، لیکن یہاں اللہ پاک نے عادت سے ہٹ کے، سبب سے ہٹ کے، علت اور معلول سے ہٹ کے، اسباب کی دنیا سے ہٹ کے، اللہ پاک نے ایک انوکھا طریقہ اختیار فرمایا، ایک انوکھی طرح اللہ پاک نے رکھی۔ وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بغیر باپ کے کی ہے۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ماں کے ذریعے تو کی ہے، لیکن اس میں باپ کا کوئی عمل دخل نہیں، کسی مرد کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو چونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خالصتاً اللہ کے کلمہ کن کا ظہور ہے، اور اس میں کلمہ کن کا مکمل بدرجہ اتم کمال طریقے سے کلمہ کن کا اظہار ہے، اس لیے اللہ پاک نے یہاں کلمہ لفظ استعمال فرمایا۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا، جو کہ ابھی غیر شادی شدہ تھی، ابھی ان میریڈ تھی، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا، انہیں کسی مرد نے چھوا تک نہیں تھا، اور حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا اپنے بلند کردار کی وجہ سے، اپنی پاک دامنی کی وجہ سے، اپنی پاک سیرت کی وجہ سے شرم و حیا کی مالکہ تھی۔ اللہ پاک اگر براہ راست یہی فرماتا کہ اللہ پاک نے تجھے ایک بیٹے کی بشارت دی ہے تو اس سے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا پر ایک شرم و حیا کی کیفیت چھا جاتی۔ اللہ پاک نے اس کیفیت سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا کلمہ۔ ایک بڑا لطیف پہلو ہے قرآن مجید کے کلام کا، یہ اعجاز ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کا اعجاز ہے۔ اللہ پاک دل کے جذبات کو بھی سمجھتا ہے، اللہ پاک اس دل کے نازک
आबगीने के अंदर, इस नाजुक तरीन आईने के अंदर उठने वाले ख्यालात, जज्बात और कैफियत की भी कदर करता है। उन्हीं कैफियत और उन्हीं जज्बात की कदर करते हुए अल्लाह पाक ने यहाँ कलिमा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि अल्लाह पाक तुझे बशारत देता है एक कलिमा की। फिर आगे देखिएगा, अब यहाँ कलिमा से मुराद, हुक्म से मुराद कोई और हुक्म नहीं है। अल्लाह पाक ने सराहतन बिल्कुल वाजे कर दिया कि वो हुक्म क्या होगा। लफ्ज़ बच्चा तो इस्तेमाल नहीं किया, बेटा तो इस्तेमाल नहीं किया, तो बेटा लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर अल्लाह पाक ने वाजे कर दिया कि वो होगा बेटा, क्योंकि अल्लाह पाक आगे फरमाता है इस्मुहुल मसीहु, उसका नाम मसीह होगा। अब यहाँ पहले जरा आप ये समझ लें कि अल्लाह पाक ने यहाँ कितनी चीजों का जिक्र किया। अल्लाह पाक ने सिर्फ नाम नहीं बताया, लक़ब बताया कि उसका लक़ब मसीह होगा। लक़ब चूंकि नाम से पहले आता है इसलिए लक़ब का जिक्र पहले किया। फिर अल्लाह पाक ने आगे जो असल नाम है वो नाम जिक्र किया, नाम होगा ईसा। फिर आगे कुन्नियत का जिक्र किया, इब्नु मरियम, वो मरियम का बेटा होगा। तीन चीजें हो गई, लक़ब, नाम और कुन्नियत। और आप तरतीब देखें, पहले लक़ब है, फिर नाम है, फिर कुन्नियत है। फरमाया उसका लक़ब मसीह होगा, नाम ईसा होगा, कुन्नियत इब्ने मरियम होगी। अब इस लक़ब को पहले आप जरा समझ लें। मसीह, मसीह कहते हैं ऐसे शख्स को, ऐसी हस्ती को जो बीमारों को सिर्फ हाथ लगाकर शिफा याब कर दे, जो मुर्दों को जिंदा कर दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर ये दोनों खुसूसियात थी। अच्छा, मसीह उसे भी कहते हैं जो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा सयाहत करे, सैर करे, जमीन के अंदर घूमे फिरे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर ये तीसरी खुसूसियत भी मौजूद थी, क्योंकि आप तबलीग के सिलसिले में, आप अल्लाह के पैगाम को दुनिया भर के अंदर आम करने के लिए आप ज़मीन के अंदर सैर व सयाहत करते। आपने कोई अपना मकान नहीं बनाया, कोई पक्का डेरा, कोई पक्का बसेरा आपने नहीं बनाया, कोई महल नहीं बनाया। आप आज यहाँ होते, कल वहाँ होते। इस तरह आपकी पूरी ज़िंदगी गुजरी। यहाँ एक पहलू जो कि बड़ा गौर तलब है वो भी अर्ज कर दूं। कुछ लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उस सैर व सयाहत को बयान करते करते कुछ लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को श्रीनगर तक पहुँचा दिया। कश्मीर का इलाका श्रीनगर, वहाँ तक पहुँचा दिया। और कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कह डाला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मज़ार मुक़द्दस है वो श्रीनगर के अंदर है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तो मज़ार है ही नहीं, आप तो हैं ही आसमानों पर। और आप जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे तो आपका मज़ार मुक़द्दस हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुक़द्दसा के अंदर बनेगा। आपके इल्म में होगा कि सबसे आगे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारका है, उनके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कब्र मुबारका है, फिर उनके साथ हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारका है, और आगे कब्र मुबारका बनेगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, क्योंकि वो दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाएंगे और ज़मीन के ऊपर आकर अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करेंगे और दीन इस्लाम को मुकम्मल तौर पर गालिब करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की हुक्मरानी होगी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। ये जो रिवायात लोगों ने की हैं कि वो श्रीनगर में गए, वहाँ उनकी कब्र मुबारका बनी, ऐसी तमाम तर रिवायात का हकीकत से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। ये तमाम रिवायात लोगों ने अपने पास से घड़ी हुई हैं। अच्छा, मसीह का माना आप समझ गए। अब आगे समझिएगा, ईसा, नाम उनका ईसा होगा, कुन्नियत इब्ने मरियम होगी। यहाँ एक बड़ी ख़ास बात है कि दुनिया के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी अफराद होते हैं, जितनी भी शख्सियात होती हैं, उनकी जो कुन्नियत होती है, उनके नाम के साथ हमेशा वालिद का नाम आता है, बाप का नाम आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि माँ का नाम आए। जैसा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज़रत आमिना के बेटे हैं, लेकिन मोहम्मद इब्ने आमिना आपको नहीं कहा जाएगा, बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह आपको कहा जाता है, क्योंकि आपके वालिद ग्रामी हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। इसी तरह आप देखें, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, उनकी माँ का नाम हाजरा है, तो इस्माईल इब्ने हाजरा उनको नहीं कहा जाता, बल्कि इस्माईल बिन इब्राहीम उनको कहा जाता है। तो यहाँ एक अनोखी बात अल्लाह पाक ने फरमाई कि ईसा इब्ने मरियम होंगे। क्यों अल्लाह पाक ने ये फरमाया? इसलिए फरमाया कि उनका तो बाप ही नहीं होगा।
बाप होता, वालिद होता तो बाप की तरफ निस्बत की जाती कि वो फ़लाँ के बेटे हैं, फ़लाँ मर्द के बेटे हैं। तो मर्द का तो अमल दखल ही कोई नहीं है उनकी पैदाइश में, उनकी तख्लीक में। लिहाजा अल्लाह पाक ने ये बात भी वाज़ेह फरमा दी कि वो इब्ने मरियम होंगे, क्योंकि उनका बाप नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ एक जहन में बहुत बड़ा सवाल पैदा हो सकता था कि दुनिया के अंदर जितने भी बच्चे बग़ैर बाप के होते हैं, या जिनका बाप मालूम नहीं होता, या जो नाजायज़ बाप की औलाद होते हैं, उनका तो दुनिया के अंदर, मुआशरे के अंदर कोई मकाम और मर्तबा ही नहीं होता। वो बच्चे तो हमेशा ज़िल्लत और रुसवाई का बाइस बनते हैं। जो नाजायज़ औलाद हो, या जिनका बाप तो हो लेकिन बाप का कोई अता पता ना हो। ऐसे दुनिया के अंदर बहुत से अफराद हुए कि जिन्हें अपने बाप का कोई पता नहीं है, या वो नाजायज़ बाप की औलाद हैं। तो अल्लाह पाक ने इस नुक्ते को भी हल कर दिया। साथ ही फरमाया वो बग़ैर बाप के तो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दुनिया के अंदर माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कोई उनको ज़लील कहेगा, या उनकी तरफ रुसवाई की निस्बत करेगा, या उनको नाजायज़ बाप की औलाद कहेगा। फरमाया ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, एक तो ये फरमा दिया कि वो हैं ही बग़ैर बाप के पैदा हुए। ये मोजिज़ा है, अल्लाह पाक का ये मोजिज़ा है कि वो बग़ैर वालिद के पैदा हुए, और उनका दुनिया के अंदर भी मकाम बहुत बुलंद होगा। फरमाया वजीहन, मुअज़्ज़ज़ होंगे वो। हज़रत ईसा इब्ने मरियम बग़ैर बाप के होने के बावजूद वजीहन होंगे, मुअज़्ज़ज़ होंगे, रेस्पेक्टेड होंगे, काबिल एहतराम होंगे। दुनिया के अंदर लोग उनकी इज़्ज़त और एहतराम करेंगे। और फरमाया फिर दुनिया वल आखिरा, उनका सिर्फ दुनिया के अंदर मकाम नहीं होगा, या सिर्फ आखरत के अंदर मकाम नहीं होगा। वो दुनिया के अंदर भी मुअज़्ज़ज़ होंगे और आखरत के अंदर भी मुअज़्ज़ज़ होंगे। वमिनल मुक़र्रबीन, और वो अल्लाह के मुक़र्रबीन बंदों में से होंगे। यहाँ एक और नुक्ते का अल्लाह पाक ने इज़ाला फरमा दिया, एक एतराज़ का। वो ये कि जैसा कि यहूद जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अच्छा नहीं जानते, वो उनकी तरफ बुराई की निस्बत करते हैं यहूद। और नसारा जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा बुलंद करते करते इतना बुलंद कर देते हैं कि उन्हें अल्लाह का बेटा करार दे देते हैं। तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इसका भी रद्द कर दिया, इसकी भी तरदीद कर दी। फरमाया वो अल्लाह के मुकर्रबीन बंदों में से होंगे, अल्लाह के बंदे होंगे, मुकर्रब तरीन बंदे होंगे, अल्लाह के बेटे नहीं होंगे। उनका मकाम और मर्तबा जितना भी बुलंद है वो अल्लाह की बंदगी में रहेंगे, अल्लाह के बंदे बन के रहेंगे, अल्लाह के बेटे बन के नहीं रहेंगे। अब सुनिएगा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 46 वयुकल्लिमुन्नास फिल महदी वकहलम व मिनस सालिहीन। अल्लाह पाक फरमाता है वयुकल्लिमुन्नास, वो लोगों से कलाम करेंगे, वो लोगों से गुफ्तगू करेंगे, फिल महदी पंघूड़े में, वकहलन और बुढ़ापे में, वमिनस सालिहीन और वो अल्लाह ताला के इंतहाई नेकोकारों में से होंगे, अल्लाह के सालिहीन बंदों में से होंगे, अल्लाह के सालिहीन बंदों में उनका शुमार होगा। अब देखें यहाँ अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये एक मोजिज़ा होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पंघूड़े में कलाम करेंगे। आम तौर पर बच्चे पंघूड़े में बोलना शुरू कर देते हैं, बाज़ बच्चे 1.5 साल की उम्र में, बाज़ बच्चे 2 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला ने अपने मोजिज़े का जिक्र किया है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान होगी कि वो पंघूड़े में कलाम करेंगे। और कलाम ऐसा नहीं होगा कि वो महज़ गूं गां करेंगे या हू हाँ करेंगे या कोई बेमाना बेतुक्का बेमतलब कलाम करेंगे। जैसा कि बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो उनकी बातें मुहमल सी होती हैं, बेमाना बातें होती हैं, उनकी बातों के अंदर कोई इतनी जामियत नहीं पाई जाती या उनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता। अल्लाह पाक ने फरमाया वो कलाम करेंगे और उनका कलाम जब होगा तो वो अपने नबी होने का खुद इजहार फरमाएंगे, अल्लाह की बंदगी का ऐलान फरमाएंगे। उनका कलाम लोगों के लिए मोजिज़ होगा, वो लोगों की अक्लों को हैरान कर देगा और लोग उनके उस कलाम को समझेंगे और लोग अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान को समझेंगे। लोग उनके कलाम को सुनकर अल्लाह के अहकाम की तरफ माइल होंगे। उनका कलाम बड़ा बामाना होगा, बामकसद होगा। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंघूड़े में ही बोलेंगे, फरमाया वकहलन, और वो बुढ़ापे में भी बोलेंगे।
पक्की उम्र में, इंतहाई पुख्ता उम्र में भी कलाम करेंगे। ये अब क्या है, पुख्ता उम्र में तो सारे बोलते हैं, ये है कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर उस वक्त बुढ़ापे के अंदर दांत गिर जाते हैं और किसी बूढ़े आदमी की बातें बसा औकात समझ से बालातर हो जाती हैं, उसकी बातें समझ में नहीं आती। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो पंघूड़े में बोलेंगे तब भी लोग उनकी बातों को समझेंगे, उनकी बातों से अल्लाह की कुदरत को समझेंगे, उनकी बातों को भी समझेंगे और अल्लाह के अहकाम को भी समझेंगे। और वो जब बुढ़ापे में बोलेंगे तब भी लोग उनकी बातों को भी समझेंगे और अल्लाह की कुदरत को भी समझेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पंघूड़े में या बुढ़ापे में बोलें तो लोगों को उनकी बातों की कोई समझ ही ना आए। यहाँ भी अल्लाह पाक ने उस नज़रिए का रद्द कर दिया जो नसारा का और ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। उसका भी यहाँ रद्द हो गया। देखिए कैसे रद्द हुआ। इलाह के ऊपर कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं होता। ये नहीं होता कि जो इलाह होता है वो कभी बच्चा होता है और कभी बूढ़ा हो जाता है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, चूँकि अल्लाह ताला हर किस्म के शिर्क से पाक है, इसलिए अल्लाह पाक ने उसका इजहार करने के लिए फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम की बला शक व शुबा बड़ी शान है, लेकिन ये समझ लो कि उनके ऊपर बचपन भी आना है और उनके ऊपर बुढ़ापा भी आना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये शान भी अल्लाह पाक ने जिक्र कर दी, वमिनस सालिहीन, वो अल्लाह ताला के नेकोकार बंदों में से होंगे। ये भी उसी नज़रिए का रद्द किया गया कि वो अल्लाह ताला के बेटे नहीं होंगे, बल्कि वो अल्लाह ताला के इंतहाई नेक, बरगुज़ीदा और सालेह बंदे होंगे। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 47 सुनिएगा। कालत, कहा, हजरत मरियम ने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, अन्ना यकूनु ली वलद, मेरे यहाँ बच्चा क्यों कर हो सकता है। अब ये सवाल क्यों था, उस सवाल का हजरत मरियम ने आगे खुद जिक्र कर दिया। वलम यमससनी बशर, हालांकि मुझे अभी तक किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया, मेरे यहाँ औलाद कैसे होगी, मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा। ये अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार करने के लिए सवाल नहीं था, बल्कि ये ताज्जुब का और हैरत का इजहार था कि अल्लाह ताला की जो आदत मुबारका है, अल्लाह ताला का जो तरीक़ा मुबारका है, अल्लाह ताला की जो सुन्नत जारिया है, जो आदत जारिया है, वो तो यही है। जब किसी औरत का निकाह होता है तो उसके यहाँ औलाद होती है, तो निकाह से पहले औलाद का होना ये इंतहाई अचंभे की बात थी। उसी का जिक्र किया हज़रत मरियम ने, मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा, हालांकि मेरी तो अभी तक ना निकाह हुआ, ना शादी हुई, ना मैं रिश्ता इज़्दवाज के अंदर मुंसलिक हुई, तो मेरे यहाँ औलाद कैसे होगी। अब इसका एक जवाब ये भी हो सकता था कि ए मरियम, तेरे यहाँ औलाद होगी, तेरा निकाह होगा और तू किसी मर्द के अक़द में आएगी और फिर तेरे यहाँ बेटा होगा, उसका नाम ईसा होगा और कुन्नियत इब्ने मरियम होगी और लक़ब मसीह होगा। तो अल्लाह पाक ने ये जवाब नहीं दिया, बल्कि अल्लाह पाक ने इसके बिल्कुल बरअक्स बात इरशाद फरमाई। यहाँ से उस नज़रिए का अल्लाह पाक रद्द कर रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बग़ैर बाप के नहीं हुई, उसका यहाँ रद्द किया जा रहा है। अगर इस नज़रिए को, जो बाज़ लोगों का नज़रिया है, अगर उसको दुरुस्त मान लिया जाए तो अल्लाह पाक ये जवाब तो ना देता, क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। फिर ये जवाब ना होता, फिर जवाब ये होता कि तेरे यहाँ बेटा होगा, निकाह के बाद बेटा होगा। लेकिन अल्लाह पाक ने ये जवाब नहीं दिया, फरमाया कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा। इसी तरह काला, अल्लाह पाक ने फरमाया कज़ालिका, इसी तरह अल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह तख्लीक फरमाता है जो चाहता है। ये है इसका जवाब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बाप के बग़ैर हुई है। फरमाया वो अल्लाह पैदा करता है जो वो चाहता है। इज़ा क़दा अमरन, जब वो किसी काम के करने का इरादा फरमा लेता है, फैसला फरमा लेता है, फ़इन्नमा, तो बस इतना ही, यक़ूलु, वो फरमाता है, लहू, उस काम से, कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो फ़ौरन हो जाता है। अब इस जवाब के अंदर आपको वो बात समझ आ गई होगी, अल्लाह पाक के इस जवाब के अंदर, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो बग़ैर बाप की हुई है। तभी तो अल्लाह पाक ने कुन फ़यकून का जिक्र किया है ना। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में किसी मर्द का भी अमल दखल होता तो अल्लाह पाक कुन फ़यकून का जिक्र न करता। अल्लाह पाक ने बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत एक मोजिज़ा है
اور وہ کن فیکون کا معجزہ ہے۔ آج کی گفتگو کا اختتام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا فیضان عطا فرمائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه